Hello students, how are you? कैसे हैं सब? Fit है. Okay. Welcome to Winsome Digital Learning Platform. I am Dipesh and I'm gonna teach you the next chapter of Social Studies for Olympiad. Earlier we have done so many questions with different uh, question solving techniques. It was instinctive, elimination method, smart guess technique. Uh, we will use most of the same techniques, but these questions are actually kind of fact based, so we will solve according to that. Okay, let's move on to first question. Which of the following term is usually used by historians to elaborate the society and socio-political institution in the France before the outbreak of the French Revolution in 1789? Yes, 1789 July के अंदर it started. Okay, it was. First option is enlightenment regime. No, it was a regime for intellectual people, not for society and socio-political institutions. Communism regime. These came in 19th or 20th century concept है. उस समय का concept नहीं था. Old regime, yes. Historians इस political जो French regime है उसको ओल्ड रिजीम से ही डिनोट करके अपनी हिस्टोरियन बुक में लिखते थे. ओके, तो रिजीम इज वेरी जेनरिक टर्म है, तो ये हमारा आंसर नहीं है. आवर आंसर इज ओल्ड रिजीम. नेक्स्ट क्वेश्चन. This Indian tribe is a primitive Negrito tribe found in Andaman Islands. Their names are coined by the neighboring tribes, which means the other people. Because they avoid interactions with outsiders, they use rafts, live in oval hut, and are excellent swimmers, and approximately 400 in numbers. Okay, which tribal people are we talking about? All right, इसका एक image भी दिया हुआ है. Okay, first is Garo. Garo Khasi की पहाड़ियां. The mountains of Garo and Khasi. It is in Meghalaya, not in निकोबार आइलैंड्स. नेग्रिटो है तो निकोबार आइलैंड के बारे में, ये अंडमान आइलैंड्स के बारे में पूछ रहा है, नॉट जारवा ट्राइब. ओके, जारवा ट्राइब इज एक्चुअली आवर आंसर, व्हिच इज व्हिच फाउंड इन अंडमान आइलैंड्स. सेंटिनलीज आइलैंड के हमें सेंटिनलीज ट्राइब भी मिलती है. दे आर एक्चुअली दे वर क्वाइट इन न्यूज because of some missionary, some Christian missionary came to that and he died from the piercing of their arrows. है ना, they are very good hunters, so they are very nice, good swimmers. And इनके बारे में जो लिखा है, they use rafts, live in old hut, and are excellent swimmers. But their number is actually very limited right now. ठीक है, the other people, because they also don't maintain any contact with outside world. Okay, Toda community, this is not our answer. Chompen community is from Nicobar Islands, but not in Andaman. ये हमारा आंसर नहीं है. ठीक है, तो our answer is Darwa community. What is sombrero, chihuahua, Acapulco and taco? Okay, taco I can consider, I can recognize immediately because I can recognize immediately because it is a Mexican food. Okay, Mexico के अंदर tacos are very famous. ठीक है, तो one is Mexico, they have nothing in common, तो I am not sure if they are all types of hats. Option C. Okay, hats is just सोम्ब्रेरो. सोम्ब्रेरो जो मैक्सिकन हैट होता है ना, वो एकदम गोल सा स्पेशल सा हैट हम लोग लगा के पहनते हैं, वो इसमें कुछ बीड्स वगैरह भी लगे होते हैं. दैट इज अ मैक्सिकन हैट. ठीक है, विच इज कॉल्ड सोम्ब्रेरो. चिवावा इज द मोस्ट एग्रेसिव डॉग का ब्रीड है. इट्स अ ब्रीड ऑफ डॉग, है ना. मैक्सिको से, ये भी मैक्सिको से रिलेटेड है, एंड बहुत छोटा सा होता है बट वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव होता है. अकापुल्को इज अ मैक्सिको सिटी, एक नेम ऑफ द मैक्सिको सिटी है. तो मतलब दे आर अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स? नो. They all are types of hats? No. Hat is sombrero. They all are associated with Mexico. That is our answer. Tacos are yummy actually. Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of the France in 1774. ठीक है. He married an Austrian princess at the age of 20. Who was she? Okay. So 1774 के अंदर what was happening was, it was kind of initiation of, मतलब एक जो सीडिंग होता है ना, जब हम किसी भी एक क्रॉप को उगाते हैं उसमें सीड आता है प्लांट बनने से पहले, फ्रूट आने से पहले, तो वो सीडिंग चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में चलते, दे वर इन ग्रेट डेट्स. 1 बिलियन सो में लिव्र, उस टाइम का जो करेंसी था लिव्र, एल
दैट वाज द करेंसी, तो लिव्ड करेंसी था, दे वर इन ग्रेट डेट्स, और डेट्स के चक्कर में उन लोगों को अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चल पा रहा था, तो ही एक्चुअली मैरिड इन एज ऑफ 20। अब द नेम, अब नेम्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, मरी, मरी, मारिया, मारिया, और मरी एंड मारिया के अंदर इतना ज्यादा फ्रांस उस समय कुछ फर्क होता नहीं था, ठीक है। तो जब मारिया क्रिस्टीना, इफ वी टॉक अबाउट, तो शी वाज फ्रॉम स्पेनिश मोनार्की, ऑफन एसोसिएटेड विद, बिकॉज जो मरी नाम से, मरी एंड मारिया नाम से था, बहुत सारी क्वीन स्पेनिश में मिलती है, इटालियन, ऑस्ट्रो हंगेरियन में भी मिलती है, तो इसलिए शी वाज एसोसिएटेड विद स्पेनिश मोनार्की। मारिया कैरोलिना एंड मरी एंटोनिए, दीज बोथ वर सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर्स। शी वाज क्वीन ऑफ नेपल्स, नेपल्स है ना, टुडे इज वेरी एक्चुअली बहुत फेमस पिज्जा मिलता है, मरी एना, नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लुई 16 एंड नॉट आवर आंसर। मरी एना भी बहुत सारे मरी एना ऑस्ट्रियो हंगेरियन, एग्जैक्टली स्पेनिश, और उसके अंदर भी बहुत सारे मिलते हैं, तो दिस इज नॉट आवर आंसर, इज मरी एंटोनियो, मरी एंटोनियो, ठीक है। मरी एंटोनियो इज आवर आंसर, शी वाज द प्रिंसेस, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर मोनार्क सिस्टम की, एम्पायर की शी वाज प्रिंसेस, से लुई 16 की शादी हुई थी। She actually met a very tragic end after the French Revolution, I guess in 1793, तो 89 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 90 अराउंड मार्च जनवरी के अंदर लुई 16 को दे गिलेटिन, गिलेटिन वाज सम एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसके अंदर बहुत हैवी सा एक ब्लेड लगा होता था, इट वाज लाइक बहुत अबोव, और उसको रस्सी से लेके छोड़ देते थे, एंड इट यूज्ड टू कम एंड behead whoever the person is getting punished। तो जनवरी के अंदर लुई 16 को बिहेड कर दिया था, उनका भी ट्रायल चला, फिर मरी एंटोनियो के ऊपर भी ट्रायल चला अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर तक आते आते उसके ऊपर भी ट्रायल चला, हाई ट्रीजन का चार्जेस लगे, डिप्लीशन ऑफ नेशनल ट्रेजरी के चार्जेस लगे, कुछ चार्जेस उस समय उन्होंने लगाए थे, नेशनल असेंबली जब बन रहा था, जब वो रॉबर्सपियर, जैकोबिन सोसाइटी और वो बाकी जो पीपल जो आ रहे थे, जो रिमूवल ऑफ एबॉलिशन ऑफ मोनार्की चल रहा था, तो उस समय जब आ रहे थे, तो उस समय और बहुत सारे चार्जेस बहुत एब्सर्ड से थे, इट वाज नेवर फाउंड, मतलब उसमें कुछ अफेयर्स के थे एंड स्टेट अफेयर में दखल अंदाजी के चार्जेस थे, एंड उसके कॉन्स्पिरेसी, सेवरल कॉन्स्पिरेसीज के चार्जेस थे, बट वो सब कभी इट वाज नेवर फाउंड, बट इनको भी गिलेटिन कर दिया गया था अक्टूबर 1793 के अंदर। World War I was started in 1914 between two alliances, the Triple Entente, Britain, France and Russia, and the Central Power Germany, Austro-Hungarian Empire and Ottoman Empire, which even triggered the war, the conquest of German conquest of Poland. It was the starting or spark plug for, मतलब जिसने जो सेल्फ स्टार्ट दे दिया था, इनिशिएटर, इग्नाइटर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, नॉट फॉर वर्ल्ड वॉर 1, एंड इट इज आस्किंग फॉर वर्ल्ड वॉर 1। द assassination, okay, this example we will chalo, okay, let's do this example first. The assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria Hungary, archduke मतलब actually it is kind of related to royal family only, ठीक है। तो Archduke Franz Ferdinand, he what, who was he? He was the next in kin or heir to Austro-Hungarian Empire। जो नेक्स्ट राजा, इससे पहले कौन थे? कार्ल लुडविक, आर्चड्यूक कार्ल लुडविक के बाद ही वाज सपोज्ड टू बी द किंग, एंड इनको जब असैसिनेशन इनका कर दिया गया, तो इट लेड टू जुलाई क्राइसिस। जुलाई क्राइसिस, अब जुलाई क्राइसिस जैसे ही हुआ, दे डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन सर्बिया। अब सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने के बाद इट वाज अ इनिशिएशन पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। द अटैक ऑफ गैलीपोली बाय द ऑस्ट्रेलियन, लाइक वी डू ऑल द एग्जांपल्स अभी, क्योंकि ये एग्जांपल्स भी किसी ना किसी के ऑप्शंस है, यू शुड नो। द अटैक ऑन गैलीपोली बाय द ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड आर्मी कोर, ठीक है, इट वाज वर्ल्ड वॉर 1 का इवेंट है, बट लेकिन इट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, इट वाज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशिएटर, इग्नाइटर नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 का, ओके। तो इसको, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। द बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर इन द यूएस, नॉट रिलेटेड, वर्ल्ड वॉर 2 का इवेंट है, ये भी वर्ल्ड वॉर 2 का इवेंट है, वर्ल्ड वॉर 1 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। A leading English manufacturer sought to build a cooperative community called a New Harmony in Indiana. Okay. The United States of America during commercial socialism
Who was he? Our first option is Robert Owen. रॉबर्ट ओवन, ओके। रॉबर्ट ओवन से करने से पहले ही वाज अ ब्रिटिश स्कॉलर, ब्रिटिश रिफॉर्मिस्ट थे ये। उससे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में कर लेते हैं। एक्चुअली इज आवर आंसर टू, बट इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव कम्युनिटी के फाउंडर थे एंड ही वाज न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ठीक है। न्यू हार्मनी, ही वाज अ ब्रिटिश स्कॉलर। कार्ल मार्क्स जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर थे एंड ही वाज फाउंड, इन्होंने सोशलिज्म के बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे। किस तरह से बाकी के गरीब से गरीब लोगों को उनके राइट्स मिलने चाहिए, पेजेंट्स के लिए बहुत लिखते थे। एंड इट वाज आल्सो इन्हीं की जो फिलॉसफी है उसको यूज करके कम्युनिज्म केम इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। वेस्प मजीनी, ओके। मजीनी किसकी तरह लग रहा है? मोजरेला चीज की तरह लग रहा है कुछ? मोजरेला, हाँ। वो चीज वगैरह का पिज्जास वगैरह कहाँ पे? इट्स इटालियन डिश। तो ही वाज इटालियन नेशनलिस्ट लीडर, इटालियन नेशनलिस्ट लीडर थे, बट नॉट रिलेटेड टू cooperative community called New Harmony in Indiana. South US से related नहीं थे, and none of these इसका option है नहीं, because our answer is Robert Owen. Okay, next question. He was the king of Macedonia. उर्दू में इसको मोस्ट ऑफ द मखदूनिया बोलते थे, है ना, मैसेडोनिया। एंड द कॉन्करर ऑफ पर्शियन एम्पायर, ही डिफीटेड किंग पोरस पुरूरवा, है ना, पुरु, किंग पुरु भी बोलते थे। इन नॉर्दर्न इंडिया ही वेरी सोल्जर्स refused to go any further, leaving some of his generals behind. He turned homeward. He died of malaria and typhoid fever at the age of 32. He was okay. He was 1 year younger than me, and he died. And he was about to conquer the world. He could not, but though he was not able to conquer India. तो जो आज का जो मॉडर्न डे इंडिया है, डेफिनेटली उस समय भी जो बाउंड्री के ऊपर जो किंग पुरु का किंगडम था, किंग पुरु के किंगडम के ही डिफीटेड पोरू, है ना, पुरु को उन्होंने, पोरस को उन्होंने हराया था, बट उसके बाद वो आगे नहीं आया था। आगे कौन करे थे? मगध, मगध जैसा बहुत बड़ा एम्पायर था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का भी राइज हो रहा था उस समय, चाणक्य वगैरह के बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा। वी विल नॉट गो इनटू सो मच ऑफ डिटेल, नहीं तो पूरा का पूरा एक लेक्चर हिस्ट्री के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आवर आंसर वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट। आवर आंसर इज, अभी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हर्नेन कॉर्टेस एंड हैनिबल बारका। हर्नेन कॉर्टेस वाज स्पेनिश कॉन्करर, Spanish conqueror थे, and he was Carthaginian. Carthaginian conqueror. He was the one of the greatest military commander. ठीक है, it's not our answer, but he was greatest, one of the greatest military commander, and he was also a military general. एक military general थे स्पेनिश, जो मॉडर्न डे आज का जो मैक्सिको है उसको इन्वेड करने का उन्होंने इसको कॉन्कर किया था, ठीक है। अब उस समय के लिए तो इन्वेजन ही था, उस समय कुछ और बोलते थे मैक्सिको को। तो उसमें एक का नाम लिखा है, स्पेनिश में नाम लिखा है, यू कैन सर्च इट आउट इन गूगल। महमूद ऑफ गजनवी, मॉडर्न डे अफगान के अंदर, नॉट आवर ऑप्शन, बट इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सुल्तान ऑफ गजनवीड एम्पायर, गजनी एम्पायर जो था, गजनी एम्पायर का मॉडर्न डे काबुल और अफगान, ठीक है। इसने भी इंडिया पे अटैक किया था एंड ट्राई टू इन्वेड, ठीक है। Which was the port town of Indus Valley Civilization? हड़प्पा, ओके। ओल्डेस्ट तो नहीं थी ये, ओल्डेस्ट वाज आवर मोहनजोदारो। हड़प्पा से इसका जो टाइम पीरियड है, दिस इज अराउंड दिस वन BCE, ठीक है। हड़प्पा, इट इज नाउ इन मॉडर्न डे पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। They have really good sides of the world. They had so much to give to the world. अभी तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान के अंदर है ना। It was one of the oldest university. So, but what they decided to do, to give terrorism to the world, not the other way around. Education वगैरह के बारे में उनका थोड़ा सा आतंकी है। कुरुक्षेत्र, वेरी फेमस सिटी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में किसको हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। भारत का जो युद्ध हुआ था 18 दिन चला था। महाभारत का पहले वाला नाम क्या था वो भी देख लो, जया संहिता। जया संहिता, जय संहिता महाभारत का अर्लियर नेम था, उसके बाद उसको महाभारत बोला। लोथल, ओके, पहले मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। दिस इज वन सिंध, पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस के अंदर था पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो मीन्स मुअन जो दड़ो, मुअन मतलब हेड, जो मतलब उसका, दड़ो मतलब
टीला, और एक तरह से जो एक फिगर बन जाता है ना, टीला बन जाता है इस तरह से करके, हिल जैसा चाहिए, मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला, इसका हिंदी में मीनिंग हुआ था लैंड ऑफ द डेड। ओके, आवर आंसर इज लोथल। इनके एडवांस ग्रेनरीज, ड्रेनेज सिस्टम है ना, ग्रेनरीज का ऑप्शन तो वैसे हड़प्पा के अंदर भी मिलता है। उनका ब्रिक सिस्टम, जो बेक्ड ब्रिक सिस्टम था, पहली बार किसी ने जो ब्रिक्स थे उनको अच्छे से सेक के, सिकी हुई जो ईंटें होती है उससे घर बनाया, पक्के घर बनाए, है ना। जो उस पे जो इनलैंड सिटी थी, इनलैंड सिटी वाज वेरी फेमस। यहाँ पे जो उस पे जो ग्रेवयार्ड था, जो बरियल सिस्टम था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मोहनजोदड़ो के अंदर। बट लोथल के अंदर दे हैड अ डॉकयार्ड, इन एडवांस डॉकयार्ड भी था, और ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत एडवांस था इनका। ठीक है, आवर आंसर इज लोथल। न्याय युद्ध, a political movement is associated with which of the following state? Okay, first it was started by, initiated by uh, R.K. Anand and led by ताऊ देवीलाल। ताऊ देवीलाल कहां पे है, लैंग्वेज पता है, ताऊ गुड मॉर्निंग, है ना। You can understand with the language that it is from Haryana, it belongs to Haryana. Uttar Pradesh is not our answer, ये तीनों ऑप्शन, राजस्थान बिहार is not our answer। उन्होंने ताऊ देवीलाल ने इसको स्टार्ट किया था। आर के आनंद वाज सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे एंड ही वाज आल्सो अ लॉयर, बट ताऊ देवीलाल वाज अ पॉलिटिशियन। उसके बाद बहुत सारे जो लीडर्स वगैरह ने उसको लेड किया था इस न्याय युद्ध को, एंड इट वाज फॉर फार्मर्स राइट, मोस्टली एसोसिएट विद द लैंड एक्विजिशन राइट के थे, कि जो जमीन के जो अधिग्रहण होता है, जमीन का अधिग्रहण होता है, अधिग्रहण मतलब लैंड का एक्विजिशन होता है बाय गवर्नमेंट, बाय कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेटेरियंस हैं या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा, तो उसको रोकने के लिए, उसके अगेंस्ट, उस पे नॉट एग्जैक्टली उस पे उसके एक्सप्लॉयटेशन को फार्मर्स के साथ रोकने के लिए दे यूज्ड इट। ओके, तो आवर आंसर इज हरियाणा, न्याय युद्ध। The pattern in which river flows is called drainage pattern. Drainage pattern depends on the slope of the land, underlying rock structure and climatic conditions of the area. The rivers flowing with the slopes of terrain and resembling the branches of tree is known as, okay, अब ये ट्री ब्रांच के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो ये तकरीबन ऐसा होना चाहिए, ऐसा, जहां से देखे वहां से पानी का फ्लो निकलना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से होना चाहिए। अभी ये जो शेप है, फर्स्ट लेट अस नो द आंसर। दिस इज डेंड्राइटिक, है ना, डेंड्रिकल्स होते हैं। इट इज अ लैटिन टर्म ही होता है डेंड्राइटिक, जिसके जितने भी किसी के जैसे ऑक्टोपस के जिस तरह से निकले हुए होते हैं डेंड्राइकल, जैसे शाखाएं बनी हुई होती है, पेड़ की शाखाएं जैसे दिख रहा है ना ये, दिस इज डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। अभी जब बाकी ड्रेनेज किए तो ये पैटर्न्स भी देख लेते हैं। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर ग्रिड जैसा कुछ फॉर्मेशन हो जाता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है थोड़ा सा, बट इसका जैसे अगर ये रिवर है तो इसका ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ग्रिड इस तरह से बन जाएगी, लगभग ऐसा दिखेगा, बट यहाँ पे थोड़े से 90 डिग्रीज के टर्न दिखेंगे आप ग्रिड में। अभी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, रेडियल मतलब होता है एक सेंटर पीक में से पूरे जो रिवर है वो आउटवर्ड की तरफ जाती है, तो उसमें कैसे जाएगी, जैसे ये रिवर पैटर्न ऐसे करके जाएगी, इस तरह से, दिस इज, ये सेंट्रल पीक हो गया, इस तरह से अगर जाती है तो दैट विल बी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर के अंदर इट बिकम्स मोर रेक्टेंगुलर शेप में 90 डिग्री पे ही बेंड होता दिखेगा। इसमें एग्जैक्ट 90 डिग्री बेंड नहीं हो रहा, बट इसके अंदर 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ हार्ड सॉफ्ट जो रॉक होता है उसका फॉर्मेशन इसी तरह का होता है कि वो उस तरह से जाती है। अभी देखो रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसा होता है, ये ऐसे करके इस तरह से, ठीक है ना, रेक्टेंगल्स बन रहे ना, इस तरह का, दिस इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। ओके, अभी दो तीन और है वो भी कर लेते हैं साथ में लगे यार। ठीक है, एक होता है पिनेट सिस्टम। अब पिनेट सिस्टम किस तरह से हो, पिकॉक जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा पूरा, ये करके यूं इस तरह से करके बन जाएगा, एक तरफ थोड़ा बनता है ज्यादा, एक तरफ ज्यादा बनेगा। अभी सोचोगे कि भाई इसी तरह का तो है, बट लेकिन ये थोड़ा सा मोर सटल कैपिलरी एक्शन इसके अंदर थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एनुअल। अब एनुअल के अंदर देखो रेडियल जैसा होता है, बट लेकिन उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आउटवर्ड ही फैले, वो हर तरफ से, अब ऐसे भी आ सकती है, 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 वापस ऊपर जा सकती है, वापस अंदर, वापस बाहर, वापस अंदर। ठीक है, तो ये भी
ये दिस इज एनुअल, ठीक है। अब एक लास्ट जो हमारा है वो पैरेलल सिस्टम जैसा होता है, पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम। पैरेलल होता है ये ऐसे चलता है, वो ऐसे पैरेलल चल रहा है, ये पैरेलल चल रहा है, तो दिस इज आवर पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम। दिस इज आवर पिनेट, PINNAT, और दिस इज आवर एनुअल, ठीक है। अभी सारे हो गए। अभी इसमें से किसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी में आए जस्ट उसका शेप देखो और उसके हिसाब से अगर वो शेप आपको दे देते हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। अगर इसके अंदर कंफ्यूजन हो तो इसके अंदर देखना कि थोड़े से ट्री ब्रांचेस की तरह होंगे, इसके अंदर थोड़ा सा मोर के पंख जैसे जिस तरह से होता है ना, उस तरह से आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा। Scientists have tried to describe the formation of physical features of the upper part of the earth crust is divided into several plates. Which of the following is an example of constructive plate boundary? अब देखो वैसे तो प्लेट जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स और वगैरह प्लेट बाउंड्री का थ्योरी बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। शायद एक क्लास के अंदर कंफर्म हम उसको पूरा भी ना कर पाए, बट इनिशियली हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो एटलीस्ट आई मेक श्योर यू विल गेट सम क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टिव है, अभी कंस्ट्रक्टिव उसके अंदर क्या होगा, तो मतलब समथिंग इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, कुछ ना कुछ बन रहा है। अभी एक डाइवर्जेंट प्लेट थ्योरी होता है और एक कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंस कैसे होगा, अब आप क्या करोगे, जस्ट सी दिस, अभी अपना हाथ को इस तरह से लेना है, अभी हाथ को अपने मूव जैसे यू कैन सी इट, अभी जैसे हाथ को यहाँ पे ऐसे रखो, देखो यहाँ पे ऐसे टिप टू टिप टच किया, अब ऐसे टिप टू टिप करके उसके ऊपर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, देखो एक माउंटेन की तरह ऐसे रेंज बनने लग जाएगा, है ना, माउंटेन की रेंज बन रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ऐसे बन रहा है रास्ते में, हाँ, इसको फोर्स लगाते रहोगे तो ऐसे बन रहा है, हाँ, तो ये माउंटेन, इससे इससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ये कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होता है। अभी डाइवर्जेंट क्या होता है, जब ये आपस में ऐसे दूर जाने लगेंगे, अब ऐसे दूर जाने लगेंगे तो वो डाइवर्जेंट होता है। अभी लेकिन डाइवर्जेंस में भी अभी वहां से तो फिर ट्रेंच बनना चाहिए, फिर फोल्ड, उसमें कह रहे हैं रिज कैसे बन रहा है वो, अभी उसके बारे में भी देख लेते हैं ना। अभी मिड सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। अभी देखो एक होता है कन्वर्जेंस, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर क्या होता है कि दो प्लेट पैरेलल चलती है ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से पैरेलल ऐसे चलता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही, तो इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। जो थोड़ी सी जो डेंसर प्लेट होगी उस पर थोड़ा कम असर पड़ेगा, जो थोड़ी सी डेंस, जो लेसर डेंस होती है उस पर थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। अभी होता है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, हम लोगों ने कर लिया। अभी आता है टिबेटन प्लेटो, टिबेटन प्लेटो कन्वर्जेंस ऑफ उस पे कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल। अभी जो ये अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना इस तरह से, इट इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, टिबेटन प्लेटो जो है। टिबेटन प्लेटो के अंदर कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल जो उसमें जो बनता है कोलिजन बाउंड्री है, एक तरह का कोलिजन, दोनों जो प्लेट्स हैं वो कोलाइड करती है आपस में। अब जितना ज्यादा उसमें कोलिजन होगा, जितना फोर्स लगेगा, दो बिग कॉन्टिनेंट्स आपस में जस्ट टकराए थे तो उसकी वजह से टिबेटन प्लेटो बना था। दैट्स व्हाई इट इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, है ना, सबसे धरती का सबसे ऊंचा पठार, इसको जो हिंदी में जो बोलते हैं, दिस इज टिबेटन प्लेटो। नॉट आवर आंसर एग्जैक्टली, बट एक मिड एटलांटिक रिज है। अभी मिड एटलांटिक, एटलांटिक इज एन ओशियन, ठीक है। अभी आता मिड ओशियन रीजेस आती है, मिड ओशियन रीजेस। अभी एक शायद क्वेश्चन आगे आने वाला है, इसका भी लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, उसमें हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए हमारा आंसर है मिड एटलांटिक रिज, उसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज बनती कैसे और कंस्ट्रक्टिव कैसे है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑल ऑफ दिस, तो हमारा आंसर नहीं है। Which of the following committees was constituted by the government of India to study the elimination of poverty and its challenges? मतलब elimination of poverty के ऊपर कौन कौन सी committees हैं? But first is लकड़ा वाला कमेटी। लकड़ा वाला कमेटी was poverty से related जरूर है, but it was for estimation, measurement of policy, measurement of poverty, not estimation, measurement of poverty के लिए was for measurement of poverty. Okay. ओके, द बॉम्बे प्लान, है ना, इट वाज नॉट एलिमिनेशन, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी लकड़ा वाला कमेटी के अंदर डिस्कस नहीं किया था। तो बॉम्बे प्लान इट इज प्री इंडिपेंडेंस प्लान, वैसे तो ये, है ना, अभी के इंडिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस डे के बाद का, 1947 के बाद का नहीं है। प्री इंडिपेंडेंस प्लान बाय इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत जो रिनोड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक इकोनॉमिक प्लान बनाया था, दैट वाज नोन एज द बॉम्बे प्लान। नॉट आवर आंसर,
ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, लकड़ा वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। अभी तेंदुलकर कमेटी वाज आल्सो रिलेटेड टू पॉवर्टी, बट इट वाज नॉट। आंसर क्यों नहीं है हमारा? क्योंकि वो पॉवर्टी एलिमिनेशन पे काम नहीं कर रही, इट वाज फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी एस्टिमेशन, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि पॉवर्टी का क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारे लेके आए होंगे, बट नॉट एलिमिनेशन। आवर आंसर इज रंगराजन कमेटी 2012, आई गेस 2012। इट इंक्लूड्स द प्लान, जिसके अंदर पॉलिटी एस्टिमेशन पे था, उसको रिव्यू करना था, उसको रिव्यू करके पॉलिसी एस्टिमेशन का जो प्लान रिव्यू करके उसमें स्ट्रैटेजीज देना था टू एलिमिनेट टू पॉवर्टी, है ना, एलिमिनेट पॉवर्टी को, गरीबी को हटाया कैसे जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। He was originally priest and one of the main constitutional theorists who had drafted the constitution for France to curb the power of monarch in 1789. He also wrote an influential pamphlet called What is the Third State? Who was he? वेस्प मेजिनी के बारे में हमने पढ़ लिया, इटालियन नेशनलिस्ट लीडर है ना, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा। हमारा आंसर ये नहीं है। मीराबू, ओके, इमैनुअल जोसेफ सीएस, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन के बारे में हमने पढ़ लिया, ही वाज अ ब्रिटिश फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ब्रिटिश स्कॉलर थे, है ना, ब्रिटिश स्कॉलर थे। ही वाज वो जो हार्मनी के लिए जो उन्होंने काम किया था, याद है, न्यू हार्मनी इन द वर्ल्ड और उस तरह से करके जो आ रहा था। ही इज नॉट आवर आंसर। अभी मीराबू और जोसेफ सीएस के बीच में, अभी अगर वैसे तो छोटा, चलो एक रिकैप करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिकैप के अंदर क्या आता है, देयर वर 3 स्टेट्स, है ना, द क्लर्जीज, द नोबल्स एंड द थर्ड स्टेट। द नोबल्स वर लाइक, जो क्लर्जीज कौन थे, जो थियोक्रेटिक सोसाइटी के थे, मोस्टली टू द एसोसिएटेड टू द चर्च, जो प्रीस्ट और ये सब थे। नोबल्स कौन थे, बॉर्न इन नोबल फैमिली, किंग एंड मोनार्क का जो फैमिली होता था, देवर, है ना, जो उसके अंदर वो आते थे, सेकंड स्टेट थे। और उसके बाद जो सेकंड, जो लास्ट के अंदर आता था, थर्ड स्टेट, उसके अंदर स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन, पेजेंट्स, आर्टिजन्स, जो बाकी जितने भी कॉमन पीपल वगैरह थे, जितने सारे थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। अब उनके पास इतने राइट्स थे नहीं, तो हम उनको स्टार्टिंग इनिशिएशन में नहीं देते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब एबोलिशन ऑफ मोनार्क हो रहा था, जैसे ही मोनार्की को एबोलिशन वगैरह कर रहे थे, तो सो मेनी, ऐसा नहीं थे कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग उसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर मोनार्क और उस सिस्टम के अगेंस्ट थे, है ना। देयर वर सम पीपल हु आर फ्रॉम द नोबल फैमिली, हु आर फ्रॉम द क्लर्जीज, प्रीस्ट वगैरह जो थे, उन लोगों ने थर्ड स्टेट का सपोर्ट किया था। उसी के ये 2 एग्जाम्पल है। मीराबू वाज नोबल फैमिली से थे ये, एंड जैसे बोला, हमारा जो आंसर है वो है इमैनुअल जोसेफ सीएस। ही वाज अ ओरिजिनली अ प्रीस्ट, मतलब क्लर्जी, जो फर्स्ट एस्टेट थी उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। अब मीराबू के साथ भी यही था कि उन्होंने उनके लिए काम बहुत किया था उन्होंने। मीराबू वाज द आल्सो द वन, अब एक्चुअली क्या, मीराबू डाइड इन 1791, आई गेस। 1791 में ही अगर मर गए थे, और 1789 के अंदर जब है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो व्हाट हैपेंड वाज, ही वाज द वेरी अर्ली इंपॉर्टेंट फिगर था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, बहुत शुरू शुरू के अंदर थे। बट ही डाइड इन 71, तो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट उस चीज में कर नहीं पाए, ज्यादा देख नहीं पाए, जब लिबर्टी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आ गए थे, फ्रेटर्निटी वगैरह के। बट इमैनुअल जोसेफ सीएस जो थे, ही एक्चुअली, अब उन्होंने थर्ड, व्हाट इज थर्ड स्टेट वाला, इसका जो ऑथर भी थे, एंड वो पैम्पलेट रेवोल्यूशन के ऊपर बहुत बोला, पैम्पलेट बांटना। अभी ऐसा नहीं है कि हर चीज एक साथ आ जाता है। अभी अगर जैसे आप जो घर, आपके घर पे वाटर बॉटल भी है ना, उसके ऊपर ढक्कन आने में भी 200 साल लग गए होंगे, है ना। अभी वो एक शॉपिंग मॉल भरा पड़ा है इन्वेंशन से। आप एक साइंटिफिक इन्वेंशन, एक एक साइंटिफिक इन्वेंशन एक एक इंसान के नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हुआ है। तो इन्होंने भी पैम्फलेट बांट के, जिस तरह से कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, कैसे लोगों को अवेयर करते हैं, ही डिसाइडेड ऑन दैट, ठीक है। तो हमारा आंसर है, ही वाज फ्रॉम क्लर्जी, इमैनुअल जोसेफ सीएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। X is responsible for the deflection of winds towards the right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere due to the difference in the linear velocity of rotation of earth. Identify X. अच्छा, चलो इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं ना। ओके, अल नीनो, ला नीनो। पहले स्टैटिक फोर्स कर लेते हैं। स्टैटिक फोर्स क्या होता है, विच डजंट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है। वो डायनेमिक होता है, स्टैटिक फोर्स होता है, एक डायनेमिक फोर्स होता है। डायनेमिक फोर्स कैसा हो जाएगा, टाइडल वेव्स हो जाती है, टाइडल एनर्जी जो होती है, टाइडल फोर्स जो होती है, वो कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। स्टैटिक फोर्स का एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग अगर लेना चाहे,
मतलब दो ग्रेविटेशन है डायनेमिक ऑल्सो, क्योंकि वो जब सोलर सिस्टम के आसपास जब चक्कर लगाता हो तो अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स उसको लगता है, बट लेकिन अर्थ के कॉन्सेप्ट में बात करें तो 6.674 इंटू समथिंग जो 10⁻⁸ nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर वगैरह का जो फॉर्मूला होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, विच यू ऑल नो, आई नो, एवरीवन इज प्रीटी स्मार्ट, बट आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक रिविजन। जो स्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका एक प्राइम एग्जांपल है ना। स्टैटिक हर जगह फोर्स स्टैटिक लगता है, ठीक है। डायनेमिक का मैंने बता दिया, टाइडल, ठीक है। अभी आते हैं अल नीनो और ला नीना। अल नीनो और ला नीना, देज आर टेम्परेचर इन्वर्जन के जो उस पे थ्योरी पे काम करते हैं। अल नीनो इज द राइज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशियंस। जो ओवरऑल जो ओशन का टेम्परेचर होता है उसमें अगर राइज हो रहा होगा तो दैट इज आवर अल नीनो इफेक्ट, इज ऑल्सो डेंजरस, ठीक है। अब एक ला नीना इफेक्ट होता है अल नीनो का ऑपोजिट। if there is a decrease in the temperature of overall oceans or surface of the oceans, that is known as La Nina। तो हमारा आंसर ये दोनों नहीं है। अभी क्या है, कोरियोलिस फोर्स। अभी कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, देखो कोरियोलिस फोर्स, ओके, लेट मी टीच यू फ्रॉम अ ग्लोब, ओके। देखो ये है हमारा ग्लोब, ठीक है। अभी क्या है कि अर्थ हमें पता है थोड़ी सी टिल्टेड है ना, और अपने एक्सिस पे ही घूम रही है। अभी एक्सिस पे अगर घूम रही है, अभी देखो, अभी अगर इसके अंदर मैं कुछ रखना चाहूं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको पेन को रखना चाहूं, क्या मैं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूं। लेकिन अगर मैंने इसको घुमा दिया तो पेन इसके ऊपर टिक पा रहा है क्या? अगर एक घूमते हुए पे मैं पेन टिका पा रहा हूँ क्या? नहीं टिका पा रहा ना। वाई? बिकॉज एक फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है। अभी नर्दन, अभी यहां से अगर ये घूम रहा होगा तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, यहां से अगर ये घूम रहा होगा तो इस तरफ से फोर्स लगाएगा। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है ना। अभी जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है ऐसे करके, अब सोचो कि देखो एक चीज बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा लैंडमास है, तो उसमें क्या होता है कि अब वो विंड्स को भी डिफ्लेक्ट करता है और वाटर को भी डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अभी जहां से घूम रहा होगा अर्थ का जो उसका जो स्पाइरल जो विंड का और जो ओशन के जो वाटर है उसका जो मोशन है वो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता रहेगा, है ना। तो दैट इज आवर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बहुत सिंपल है, बहुत वीक फोर्स होता है, बट लेकिन इट इज एप्लीकेबल इन बहुत सारे फिनोमिनन के लिए। कोरियोलिस फोर्स इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जब हम आगे चैप्टर्स में यू विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज वगैरह, तब भी आप लोगों को ये फोर्स काम आने वाला है। आवर आंसर इज डी, कोरियोलिस फोर्स। This term is a financial term that means fall in the value of goods over a period of time. What is this term? And first option is annuity. It is a fixed एक तरह का फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड पेमेंट होता है, फिक्स्ड पेमेंट फॉर इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए, मतलब यूजुअली इन ईयर उस पे जो फिक्स पेमेंट हम लोग करते हैं, दैट इज एन्युटी। आर्बिट्रेज, ओके, आर्बिट्रेज क्या होता है कि व्हेन जैसे आपने किसी जगह मोल भाव किया, 10 दुकान पे पूछा, है ना, आपने आसपास की दुकान पे पूछा, एक जने ने बोला, वन शॉपकीपर सेड टोल्ड यू दैट इट इज ऑफ 10 रुपीज, दूसरी जगह गए इट इज ऑफ 12 रुपीज, किसी ने बोला यहाँ पे तो 9 रुपए का है, और आप इस जगह गए, लास्ट की दुकान पे गए, उससे पहले दुकान पे गए तो उसमें आपको बोला दिस इज ओनली ऑफ 8 रुपीज, ठीक है। अभी आपको पता है मार्केट स्टैंडर्ड रेट इसका 10 रुपीज है, ठीक है। जो आप 8 रुपए में सेम चीज आप लेके आ रहे हो, तो आपको सिर्फ प्राइस में डिफरेंस की वजह से, रिमेंबर दिस पॉइंट, प्राइस में डिफरेंस की वजह से यू गॉट 2 रुपीज का प्रॉफिट, दैट इज योर आर्बिट्रेज। जो आपको प्रॉफिट होता है प्राइस में डिफरेंस की वजह से, दैट इज आर्बिट्रेज। ये दोनों हमारे आंसर नहीं है दो। अभी एक कहता है ग्रेचुइटी। अभी अपने अगर आपके फादर वगैरह जो काम कर रहे हैं या आपके दादाजी वगैरह कोई रिटायर हुए, आस्क देम क्या है कि ग्रेचुइटी क्या होता है कि एक लंप सम अमाउंट आपको मिलता है, यू गेट अ लंप सम अमाउंट एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट। आपका जो पूरा जॉब का जो कार्यकाल है, प्रोबेशन और जो आपका जो जॉब टेन्योर है, when it is ended, then you get a lump sum amount, that is known as gratuity। उसके अंदर सारा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है डेप्रीसिएशन। एक प्राइस के अंदर ड्यू टू उसके वेयर एंड टीयर यूजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वजह से उसके जो वैल्यू के अंदर जो एक डिक्लाइन आता है, दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। एप्रिसिएशन इसका ऑपोजिट होता है, बट दोज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। आवर आंसर इज डेप्रिसिएशन, ओके। मूल्य का ह्रास इन हिंदी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। वन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बाइकैमरल। बाइकैमरल मतलब क्या होता है?
बाइकैमरल मतलब देयर विल बी टू लीगल लॉ मेकिंग बॉडीज। ओके, पार्लियामेंट की दो लीगल बॉडी कौन सी भी है ना, एक है हमारी लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा। तो हमारे पास तो दो लोकल बॉडी है, बाइकैमरल का मतलब तो ये तो कंडीशन का फुलफिल कर रहा है। अभी लेकिन अगर आपसे पूछे कि पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन से हैं, तो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अभी प्रेसिडेंट के बारे में, लेकिन बाइकैमरलिज्म के अंदर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, तो आवर पार्लियामेंट इज एक्चुअली बाइकैमरल। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल, करेक्ट, and comprises of 342 members. 342, no, our Lok Sabha has 343 members. Earlier it was 543 members. 545 members थे पहले। 545 members मतलब दो members कहाँ गए, तो they were belong to, उस समय वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे। अब लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो जितना भी उन्होंने उस चीज को, उस क्लॉज को हटा दिया है, तो वी हैव 543 members। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ही पूछ रहे क्या, तो आवर आंसर इज दिस। लेकिन अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप फॉर राज्यसभा इज 30 years. Yes, this point is correct. In the Indian parliamentary, 0 hour starts at 12 noon after the question hour. Yes, जो इनिशियल का जो आवर होता है दैट इज क्वेश्चन आवर, और 12 बजे से पहले जो 12 बजे 0 hour होता है, उसके बाद जो स्टार्ट होता है अपना 0 hour। द 0 hour स्टार्ट्स एट 12 noon। 12 बजे जो स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद, दैट इज आवर 0 hour। उसके अंदर वो लोग किसी भी बिल को बीच के अंदर भी ला सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा बिल है जो बहुत अटमोस्ट अर्जेंसी का है, इंपॉर्टेंस है, तो वो 0 hour के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओके, कॉलम 1 इज डायनेस्टी, कॉलम 2 इज फाउंडर। उसके बाद चोला किंगडम का फाउंडर। अभी चोला किंगडम का फाउंडर कौन थे? यस, आवर ऑप्शन इज क्यू विजयालया। जो किंग विजयालया थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। मौर्यन एम्पायर, इट्स काइंड इजी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया था। राष्ट्रकूटा एंड पल्लवा के अंदर अगर हमें डाउट भी हो, सिंह विष्णु दंती दुर्गा। अभी राष्ट्रकूटा के अंदर जो है ना दंती दुर्गा ना, अब ये रानी दुर्गावती वगैरह, अगर दुर्गावती मूवी से भी याद आ जाए तो भी ठीक है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्गा, और लास्ट में पल्लवा, ही वाज विष्णु, और ऐसे ऐसे करके सिंह वगैरह का उनके बहुत सारे आर्किटेक्चर आपको मिलेंगे। अभी आप उनका आर्किटेक्चर और लिटरेचर देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर इसका है पल्लवा का। अभी क्या है, चोला का क्या है, विजयल्या, तो वन का क्यू इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, मौर्य का चंद्रगुप्ता, ठीक है, इधर है, ठीक है, इसका आर है ना, मौर्य का चंद्रगुप्ता, तो हमारा आंसर है डी। वन का क्यू, सेकंड का आर, थर्ड का एस एंड फोर्थ का टी। Match the column 1, column 2. Okay, first column is political party, second column is slogan. ये नेशनल कांग्रेस INC, जनता पार्टी, तो पहले जनता पार्टी थी, जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी हो गई। लेफ्ट फ्रंट मतलब ये कम्युनिस्ट पार्टी है, और तेलुगु देशम पार्टी मतलब ये रीजनल पार्टी है। ठीक है, अभी कुछ भी अगर आपको मतलब एक तरह से याद नहीं आए तो देखो इस ऑप्शन को देखो, तेलुगु देशम पार्टी, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु, ये तो आंख बंद करके लगा दोगे। ठीक है, एस का जो है फर्स्ट, एस का फर्स्ट कहां पे, ये वाला है। अभी देखो ये भी आता होगा तो आपका आंसर तो डन हो गया, ठीक है नहीं, एस का वन एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो अगर आपको ये भी अगर आता होगा तो आप पूरा आंसर तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें जब अभी हमारा जो मकसद है, आवर मोटो इज टू गेन नॉलेज, तो अभी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने वो याद है गरीबी हटाओ गरीब हटाओ कर दिया था मैनिफेस्टो के अंदर। ठीक है, तो वो उसके अंदर चेंज हुआ था, तो रिमूव पॉवर्टी। जनता पार्टी का जो था उसको कहते थे भाई लोकतंत्र बचाओ, अगर लोकतंत्र बचा रहेगा तो पूरा कंट्री बच जाएगा, तो जनता पार्टी का स्लोगन था। और लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन बचता है लेफ्ट फ्रंट का, लैंड टू द टिलर। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था ना कि सोशलिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता था, और वो कम्युनिस्ट और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी का बेसिस भी था। तो उसके अंदर वो क्या कहते थे, जो लास्ट जो पेजेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, इन लोगों को ही सारी पावर, और लोगों के हाथ में पावर, इन लोगों को पावर देनी चाहिए। तो लैंड टू द टिलर, जो उस लैंड की
बुआई करता है, टिलिंग करता है, उसी की वो लैंड होनी चाहिए, ठीक है। उसकी एक्विजिशन नहीं होनी चाहिए, उसका अधिग्रहण इस तरह से जबरदस्ती नहीं करो, उसके ऊपर से उसको एक वहां पे किराएदार या मतलब उसको सिर्फ काश्तकार बना के मत रख दो, है ना, कल्टीवेटर बना के मत रख दो कि भाई उसको छोटा मोटा पैसा अपना वो घर भी नहीं चला पा, करेक्ट, ठीक है। तो लेफ्ट फ्रंट का आ गया, तो हमारा आंसर पता चल गया ना, कौन सा है, सी। Read the given statement and select the option that correctly fills the fill in the blanks. Okay, is the longest circle of the latitude. Okay, अभी हमने जब ग्लोब देखा था तो उसके अंदर देखो, अभी एक अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स के अंदर डिवाइड करने वाला अर्थ इज स्फीयर, स्फीयर है। वैसे तो अर्थ का जैसे वो इसका उसका ना संतरा मौसम्बी कैसा भी शेप नहीं है, अर्थ का जो शेप है दैट इज जियोइड शेप आता है अर्थ का, है ना, क्योंकि बिकॉज कहीं पे बहुत बड़े माउंटेन रेंजेस है, कहीं पे इट हैज वैलीज, ट्रेंचेस, ओशियंस, कहीं पे बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स है ना, कहीं पे कॉन्टिनेंट्स, तो एक जियोइड शेप है, जियो इज रिलेटेड टू अर्थ, है ना, तो जियोइड शेप अर्थ का शेप है, उसको दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करने वाले जो लाइन है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, एंड वो सबसे बड़ी लाइन भी होती है, ठीक है। अभी सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है क्या? ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, अभी क्या होता है कि इंडिया का अगर जैसे मैप देखोगे, इंडिया का मैप अगर देखो, ठीक है, अभी ड्राइंग के ऊपर प्लीज मत जाना, तो ये दो लॉन्गिट्यूड होगी यहाँ पे, ये पूरे ऐसे लॉन्ग टच करेगी, यहाँ पे टच करेगी, ये यहाँ पे टच करेगी। अभी ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इसके बारे में पूछ रहा है, तो उसके अब दो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया मतलब क्या है कि इंडिया किस लॉन्गिट्यूड से किस दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है, तो ईस्टर्न मोस्ट पूछ रहा है, तो ये हमारी जो लॉन्गिट्यूड है, जो अरुणाचल प्रदेश हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, तो ये है 96, 325, ठीक है। तो हमारा आंसर है पहला इक्वेटर हो गया 97.25, 92.5 हमारा आंसर नहीं है। तो अभी अगर आंसर निकालना हो तो हमारा आंसर निकल चुका है, लेकिन उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। द मेरिडियन दैट रन्स थ्रू इज कंसिडर्ड एज प्राइम मेरिडियन। अच्छा, प्राइम मेरिडियन से ही टाइम निकलता है। लंदन के अंदर एक प्लेस है विच इज कॉल्ड ग्रीनविच, और उसी से ही निकलता टाइम ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, है ना। अब प्राइम मेरिडियन के जस्ट ऑपोजिट में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? कैन यू गेस? दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। बट लेकिन प्राइम मेरिडियन जैसे स्ट्रेट ऐसे इस तरह का सर्कल है ना, जैसे अर्थ को जो जिस तरह डिवाइड करता है, अभी ये इक्वल पोर्शंस में डिवाइड नहीं करता क्योंकि ये हाफ सर्कल्स है। और जितने भी मेरिडियंस है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, प्राइम मेरिडियन तो एक ही है, जितने भी मेरिडियंस है, लॉन्गिट्यूड्स है, दे आर हाफ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। हाफ ऑफ इक्वेटर की उसमें आएगा, क्योंकि फुल जो लैटिट्यूड्स है वो फुल सर्कल बनाते हैं। पहले इतना बड़ा सर्कल बनेगा, फिर उसके ऊपर जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 के ऊपर जो आपको मिलता है, तो वो थोड़ा छोटा सर्कल बनाते हैं, फिर छोटा, फिर और छोटा, और पोल्स के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लैटिट्यूड कवर करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लैटिट्यूड ऑफ 900 इज 900 सिचुएटेड एट पोल्स। ये तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरिडियन रन्स थ्रू ग्रीनविच मीन, ग्रीनविच के अंदर है ना, ग्रीनविच हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इज इक्वेटर 97.25, ग्रीनविच एंड पोल्स, ठीक है। हमारा पोल्स है तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज 7 डिग्रीज, राइट, ठीक है। हमारा आंसर सबको समझ आया? थोड़ा सा ही आपका कॉन्सेप्ट है। अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वैसे तो 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है लोग पढ़ाने, ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो हमें समझनी पड़ती है। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन है, अब इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट एन स्ट्रेट लाइन, वो इस तरह से जिगजैग है, वो इस तरह से जिगजैग करके है। व्हाई? कैन यू नो द डू यू नो द आंसर? बिकॉज दिस दैट इज अकॉर्डिंग टू बाउंड्री। अभी एक ही कंट्री का आपने स्ट्रेट लाइन बना दिया, उसने किसी कंट्री का एक पोर्शन अलग कर दिया, तो अभी सोचो इंडिया की तरफ से तो गुजरात के अंदर अलग टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे आते ही मध्य प्रदेश में आते ही टाइम दूसरा चेंज हो जाएगा, तो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने एक जिगजैग लाइन को उसको एक इंटरनेशनल लाइन मान लिया, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, the world's longest mountain chain, the mid-ocean region is almost entirely beneath the ocean. अच्छा, incorrect statement को select करना है. The world's longest mountain chain, the mid-ocean ridge is almost entirely beneath the ocean. Arctic Ocean is the largest ocean in the world. It contains 25,000 islands. No, it is the smallest ocean. है ना, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही wants to wear. This is our answer. But the Great Barrier Reef measures about 2300 kilometers. It can be seen from the moon.
यस, स्पेस से दिखता है, मून से दिखता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट के अंदर है, 2300 किलोमीटर का, और बहुत बड़ा पोर्शन है। वो क्या है? द ग्रेट बैरियर रीफ इज कोरल रीफ का बहुत बड़ा जो है सेंटर है, मतलब उसमें जो पूरा है उसमें आपको कोरल रीफ्स मिलेगा। अभी जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट को हम लोग क्या लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, लंग्स, बिकॉज इट प्रोवाइड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो कोरल रीफ्स है वो किसे कैल्शियम और उसके जूजेंथले वगैरह का जो एक वो कॉन्सेप्ट है कि वो उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, है ना। जूजेंथले के ऊपर एक कोरल्स फॉर्म होते हैं, वो दैट मेड ऑफ कैल्शियम, और वो क्या करते हैं? सैलिनिटी ऑफ ओशियंस को कंट्रोल करते हैं। अभी सैलिनिटी ऑफ ओशन को कंट्रोल करने की वजह से जो बाकी की जो वहां की लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, इट कैन ग्रो, है ना, और ज्यादा लाइफ ग्रो हो सकती है। मीठे पानी में ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो वैसे ओशन बड़ा है उसकी वजह से इसके अंदर बड़ा है, तो वहां पे खारे पानी की मछली और उस तरह से बाकी जो मरीन एक्वेटिक लाइफ है वो आपको मिलती है। लेकिन जैसे अमेज़न फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज किडनीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट बैरियर, आपको कभी भी ऑप्शन ऐसा आता है, कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नोन एज द किड, आल्सो नोन एज द किडनीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ। जो कोरल रीफ का जितना भी पूरा पोर्शन है, दैट इज किडनीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट, क्योंकि किडनी हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करता है? इट प्योरिफिकेशन करता है ना, क्लीन करता है उसको, उसको देर से डिस्टिलेशन, उसको प्योरिफिकेशन एंड जितना भी जो प्रोसेस है गंदगी को साफ करता है, तो वो ही काम कोरल रीफ ओशियन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है, आंसर तो हमारा ये, तो ग्रेट बैरियर रीफ हमने जो कोरल रीफ के बारे में पढ़ लिया। अभी मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ, अराउंड 11 किलोमीटर डीप। यस, मारियाना ट्रेंच जो है, मारियाना आइलैंड है, दो प्लेट होती है। हमने प्लेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था ना, बाउंड्रीज और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में क्या था कि एक मारियाना आइलैंड है, मारियाना प्लेट है, मारियाना प्लेट व्हेन पैसिफिक प्लेट के साथ अब मिलती है, ये सबडक्शन से बनता है। सबडक्शन क्या होता है? जैसे दो प्लेट ऐसे आपस में है, धीरे 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 करके पास आती है, और जो ऐसे भारी प्लेट होती है, जो डेंसर प्लेट होती है, वो स्मॉलर जो प्लेट है वो सबडक्ट कर देती है। तब अब ऐसे हो जाएगा, ये तो आगे निकल जाएगी, ये जो प्लेट है ये सबडक्ट कर जाएगी, समझ गए? तो यहाँ पे एक ट्रेंच फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे ट्रेंच फॉर्म हो जाएगा। और मारियाना प्लेट और पैसिफिक प्लेट एक्चुअली डेंसर है, तो वो प्लेट उसको सबडक्ट कर देती है और वहां पे ट्रेंच फॉर्मेशन हो जाती है। देखो जैसे है ना, ये प्लेट अभी इसमें फोल्ड, अभी इसमें माउंटेन बनने देगा, अभी ये सबडक्ट करने लग जाए तो यहाँ पे ये यहाँ से प्लेट निकल जाएगी और यहाँ से ऐसे ये नीचे की तरफ चला जाएगा, सबडक्शन होता है उसके अंदर। तो मारियाना ट्रेंच विल बी फॉर्म, है ना। अभी आते हैं हमारे जो एक हमने जो बताया था ना, मिड ओशन रेंजेस। मिड ओशन रेंजेस में जो मिड अटलांटिक वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था ना, मिड अटलांटिक रेंज वाला, उसके अंदर कौन सा? यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसमें जो उसके अंदर उनके बीच में डाइवर्जेंस होता है, और डाइवर्जेंस की वजह से क्या होता है कि देखो, अब डाइवर्जेंस की वजह से अगर ये दोनों प्लेट्स दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे तो ट्रेंच बनना चाहिए था, है ना, यहाँ पे तो वैली टाइप का कुछ बनना चाहिए था। तो रिज एक तरह से कैसे बनने जा रही है? अभी रिज क्या होता है कि रिज होता है कि उसका जो आपको जो बाहरी किनारा वगैरह दिखता है, लेकिन उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव वो क्यों बन रही है? कंस्ट्रक्टिव इसलिए बन रही है अभी बिकॉज नीचे जो अर्थ के जो मेंटल से एक मोल्टन लावा बाहर आ जाता है। जैसे प्लेट ऐसे गई, अगर प्लेट दोनों आपस में दूर जा रही है, नीचे से लावा ऊपर की तरफ आ जाता है, एक नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे ये गई तो यहाँ से लावा ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर से लावा आने की वजह से एक वो कूल डाउन होता है ओशन वाटर से, और उसकी वजह से वहां पे एक नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज नो व्हाई इट इज नोन एज, वहां पे जाता है ना कंस्ट्रक्टिव, क्यों है कंस्ट्रक्टिव? इसी वजह से, समझ आया? ठीक है ना। अभी कंस्ट्रक्टिव के बाद अभी तुम्हें समझ आ गया ना, तो मिड ओशन रिज और तो मिड अटलांटिक जो है वो मिड ओशन रिज का ही एक पार्ट है। मिड ओशन रेंज एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर ईस्ट पैसिफिक राइज भी आ जाता है, मिड अटलांटिक रिजेस भी आ जाती हैं, इंडियन ओशन रिजेस भी आ जाती है। ये 65,000 जो किलोमीटर्स हैं उसके अंदर ये पूरा फैला हुआ है, ऑलमोस्ट एंटायरली कवरिंग द ओशियन। जो बीनीथ द ओशन है पूरा कवर कर रहा है। जो मिड अटलांटिक रिज है वो भी अराउंड 23,000 किलोमीटर्स की है, ठीक है। तो दैट वाज आवर फुल 20 क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। कुछ फैक्ट्स वाले थे, उसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब जल्दी मिलेंगे, टेक केयर।